Reorder point planning कैसे work होता है, that we will see. Now in last session we run MRP for a material with reorder point planning. So basically what is reorder point planning? So in reorder point planning, system keeps on checking the existing stock level of the material master record. In material master record, we specify a reorder point. Reorder point. So that is the point based on which this reorder point planning will work. This is basically a consumption based planning. What do you understand by consumption based planning? So consumption based planning is nothing but it is based on previous consumption data. तो अगर हम किसी पर्टिकुलर मटेरियल की बात करते हैं तो एक सिंगल मटेरियल, लेट अस सपोज द मटेरियल कोड इज x. This material code x you are consuming on monthly basis. For example, last month you consumed 500 quantities. Before that month you consumed 500 quantities. Before that month you consume 500 quantities. So monthly you are consuming 500 quantities. So average 500 quantities you need on a monthly basis. How you are determining this? You are determining this based on the consumption, previous consumption data. So when you order for next month, you order at least 500 quantities because this is what your consumption tells you, that on a monthly basis you need 500 materials or 500 quantities of this material X. Okay, so how this 500 is defined, that we will see. So reorder point planning is the planning method where system keeps on checking the reorder point maintained in the material master record with the existing stock quantities. The different, if the existing stock falls below the reorder point maintained in the material master record, in the next MRP run, system will consider that material for MRP and MRP run will try to replenish the quantities to match the reorder point planning level. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस मटेरियल मास्टर में मैंने रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग, जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, इफ माय रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग level is maintained as 5000 in the material master record, and if existing stock of this material in my plant is 2500, so system keeps on checking the reorder point level. Let us suppose initially the stock level is 7000. मटेरियल मास्टर है, उसमें हमने रीऑर्डर पॉइंट मेंटेन किया 5000 और उस मटेरियल का अभी हमारे स्टॉक में प्लांट में स्टॉक है 7000 क्वांटिटीज. नाउ सिस्टम कीप्स ऑन चेकिंग द रीऑर्डर पॉइंट एंड द एग्जिस्टिंग स्टॉक. सो फॉर एग्जांपल आपने इस मटेरियल एक्स का गुड्स इशू किया प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, 1000 क्वांटिटी का. सिस्टम चेक करता है, जैसे ही आपने ये गुड्स इशू कर दिया, सिस्टम चेक करता है कि एग्जिस्टिंग स्टॉक रीऑर्डर पॉइंट से कम हुआ या नहीं. फॉर एग्जांपल अभी एग्जिस्टिंग स्टॉक क्या हुआ, 1000 गुड्स इशू करने के बाद 6000 हुआ. सो सिस्टम विल चेक 6000 इज लेस देन 5000 और नो.
आंसर इज नो। तो इसका एमआरपी रन भी होगा तो इसमें कुछ नहीं होगा, बिकॉज दिस कंडीशन इज नॉट मेट। व्हाट इज द कंडीशन? इफ द स्टॉक फॉल्स बिलो, existing stock falls below the reorder point planning, then only that materials MRP will run. ठीक है, उसका एमआरपी रन होगा और उसमें प्रोक्योरमेंट प्रपोजल जनरेट होगा। अगर स्टॉक ज्यादा है तो एमआरपी रन नहीं होगा। नेक्स्ट डे आपने फिर 1000 इशू कर दिया तो स्टॉक में हो गए 5000। अगेन 5000 इज नॉट लेस देन 5000, यहाँ पे भी एमआरपी रन। नेक्स्ट डे आपने 1000 यूज किया, 4000। नाउ दिस इज द पॉइंट जहां पे आपका एग्जिस्टिंग स्टॉक का लेवल रीऑर्डर पॉइंट से कम हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट प्लानिंग रन, system considers this material for MRP run and MRP will generate a PR or planned order of 1000 quantities. Here, तो every time you do any transaction, आपने गुड्स रिसिप्ट किया या गुड्स इशू किया, कोई भी गुड्स मूवमेंट किया, तो सिस्टम ये दोनों को चेक करता है एंड मेक श्योर कि इसको नेक्स्ट प्लानिंग रन में कंसिडर करना है या नहीं करना। नाउ लुक एट दिस फिगर, reorder point planning. Now the existing inventory level you can see is this. Suppose this is the day we are discussing here and the existing inventory level is this. Reorder point is maintained as this. Okay, so existing inventory level is this, means suppose your existing inventory, we took an example of 7000 quantities, right? So let us take the existing inventory as 7000 quantities. एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री का जो लेवल है वो 7000 है, अपना रीऑर्डर पॉइंट का जो लेवल है वो 5000 है। okay, and this 5000 includes safety stock as well. What is safety stock? Safety stock is the stock that is reserved for emergency purposes. ठीक है, that is kept as a safety, that includes that is considered in your reorder point plan. ठीक है, now this is your time axis. So if आज के दिन से अगर हम प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं तो जैसे जैसे टाइम के साथ आपका प्रोडक्शन होता जाएगा वैसे वैसे आपका एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है कम होता जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो अभी ये 7000 है, अभी एक दिन का सपोज 1000 क्वांटिटीज हमको लगता है, तो पहले दिन 1000 गया, ठीक है, ये 6000 को आएगा, सेकेंड दिन 1000 गया, ये 5000 को आएगा, थर्ड दिन 1000 गया, ये 5000 से कम हो जाएगा, 4000 को आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम 5 दिन का प्रोडक्शन लेके चलते हैं तो लेट अस सपोज द एग्जिस्टिंग लेवल इज 10000। ठीक है, तो मंडे को ठीक है, मंडे को 1000 यूज किया तो आपका ये लेवल हो गया 9000। फिर ट्यूसडे को 1000 आपने यूज किया, फिर आपका लेवल हो गया 8000, फिर 1000 यूज किया आपका लेवल हो गया 7000, फिर 1000 यूज किया आपका लेवल हो गया 6000,
फिर 1000 यूज किया, आपका लेवल हो गया 5000। तो फ्राइडे एंड तक क्या होगा, आपका यहाँ पर 5000 आया, मतलब आपका एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री का लेवल 5000 आया। नाउ जैसे ही आप मंडे को इशू करोगे, क्योंकि यहाँ पे कट टू कट अपना 5000 आया, ठीक है, मान लो यहाँ पे 1000 की जगह पे हमने 1200 यूज किया फ्राइडे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे रीऑर्डर पॉइंट के नीचे हमारा स्टॉक चला जाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टॉक जो होगा 4800 होगा। नाउ विच इज लेस देन योर रीऑर्डर पॉइंट। नाउ दिस रिलीज डेट इज नथिंग बट योर एमआरपी डेट। इस डेट को मतलब फ्राइडे को हमने एमआरपी को रन किया, ठीक है, फ्राइडे हमने एमआरपी रन किया। नाउ द रीऑर्डर पॉइंट is 5000 and your stock level is less than reorder point, तो इस दिन को MRP रन होगा। And when the MRP is run, again what system will do, system will replenish the stock, मतलब सिस्टम एक PR जनरेट करेगा। कितने क्वांटिटी का जनरेट करेगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे तो डिफरेंस सिर्फ 200 क्वांटिटी का है, तो 200 क्वांटिटी का PR जनरेट करेगा, तो हमारा ये पूरा जो है, जब तक वेंडर हमको मटेरियल देने वाला है, जब तक वेंडर हमको मटेरियल देने वाला है तब तक, मतलब देने वाला है मतलब डिलीवर करने वाला है, उस टाइम ड्यूरेशन तक आपका प्रोडक्शन होना चाहिए। तो वेंडर का टाइम ड्यूरेशन अगर 5 दिन है, 5 दिन वेंडर को मुझे मटेरियल सप्लाई करने में लगते हैं, तो 5 दिन मेरा प्रोडक्शन चलना चाहिए विथ माई एग्जिस्टिंग स्टॉक 4800। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आज एमआरपी रन कर रहा हूं, ठीक है, तो आज एमआरपी रन करने के बाद जब तक मेरा ये 4800 कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि मंडे को फिर 1000 यूज कर लिया मैंने, बचा 3800, फिर ट्यूसडे को 1000 यूज कर लिया 2800, फिर 1000 यूज कर लिया 1800 बचा, फिर 1000 यूज कर लिया 800 बचा, फ्राइडे को मैं सिर्फ 800 यूज कर सकता। तो अगर मेरा सप्लायर का डिलीवरी टाइम 5 डेज है, तो ये 5 दिन का मेरा प्रोडक्शन जो है वो स्मूथली चलना चाहिए, उतना स्टॉक मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में 800 आ रहा है, और अगर मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट 1000 का है, तो यहाँ पे मेरा फ्राइडे का जो है प्रोडक्शन इफेक्ट हो सकता है। सो व्हाइल डिफाइनिंग दिस रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग, this time is considered, okay, it is called as average daily requirement, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने एमआरपी रन किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक विच इज अवेलेबिलिटी डेट, मतलब वेंडर मुझे इस तारीख तक मटेरियल सप्लाई करेगा, तो फ्रॉम एमआरपी रन डेट टू डिलीवरी डेट जितना भी टाइम है इनटू मेरा डेली प्रोडक्शन जो है वो उसमें कवर होना चाहिए। दैट इज हाउ योर रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग इज सेटअप। तो रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग का डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग इक्वल्स टू एवरेज डेली रिक्वायरमेंट एवरेज डेली into number of days deliver the material, और इसको आप बोल सकते हो रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम, यहाँ पे रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम। सो रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम इज नथिंग बट वेंडर को
पीओ देने के बाद उसको मटेरियल डिलीवर करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम. That is nothing but number of days to deliver the material or number of days in which the material will be available in our plant. Ultimately क्या है, वो मटेरियल मेरे प्लांट में रिसीव होना चाहिए, उसके लिए जितना टाइम लगता है. सो एवरेज डेली रिक्वायरमेंट मतलब मेरा दिन का प्रोडक्शन का डेली का रिक्वायरमेंट कितना है उस मटेरियल का, इनटू नंबर ऑफ डेज टू डिलीवर दैट मटेरियल. सप्लायर जितना टाइम लेता है उतना दिन तक मेरा प्रोडक्शन चलना चाहिए. तो नंबर ऑफ डेज या प्लान डिलीवरी टाइम आप बोल सकते हो, इनटू एवरेज डेली रिक्वायरमेंट प्लस सेफ्टी स्टॉक इज माय रीऑर्डर पॉइंट. तो मटेरियल मास्टर में रीऑर्डर पॉइंट को जब डिसाइड किया जाता है तो इट इज बेस्ड ऑन द रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम ऑफ द वेंडर. सपोज करो वेंडर को मटेरियल रिप्लेनिश करने में 5 दिन लगता है, तो रीऑर्डर पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा, 5 डेज इनटू मेरा दिन का रिक्वायरमेंट, एक दिन का प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट मेरा 1500 है, 5 डेज इंटू 1500 प्लस मैं कुछ सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता हूँ 500 क्वांटिटीज का, तो मेरा रीऑर्डर पॉइंट आया 8000. क्लियर, अंडरस्टूड. तो 8000 मेरा रीऑर्डर पॉइंट आया. 8000 से जब मेरा स्टॉक नीचे चला जाएगा, एमआरपी रन होगा. एमआरपी रन होगा तो मेरे पास ये जो 5 दिन का डिलीवरी टाइम है सप्लायर का, हमने 5 दिन का लिया है, ठीक है, और 1500 रुपए का मेरा 1500 क्वांटिटी मेरा डेली का कंजम्पशन है, तो 5 दिन तक मेरा प्रोडक्शन स्मूथली चलेगा. इस दिन मैंने एमआरपी रन किया, 8000 मेरा रीऑर्डर का पॉइंट है, नेक्स्ट डे मैंने 1500 यूज़ किया, नेक्स्ट डे 1500 यूज़ किया, नेक्स्ट डे 1500 यूज़ कर दिया. ऐसा करते करते जब तक मैं यहाँ तक आऊँगा उस दिन तक वापस मेरा जो है, यहाँ पे हमने एमआरपी रन किया था तो वहाँ पे पीआर जनरेट होगा, उस पीआर का पीओ बन के इस दिन तक मुझे मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा. वापस मेरा इन्वेंट्री लेवल जैसा मुझे चाहिए था इतना होगा, फिर ये साइकिल कंटिन्यू होता है. क्लियर, अंडरस्टूड. सर इस केस में भी आपने बताया रीऑर्डर पॉइंट, जैसा कि अपन को सिर्फ 10,000 क्वांटिटी ऑर्डर करना है, तो फिर कैसा है, एनी टाइम वो रीऑर्डर का ही इतना ही पीआर जनरेट करते जाएगा क्या? जैसा कि 5,000 है तो बाद में 2,000 कंज्यूम होगा, तो फिर और 2,000 का ही वो पीआर जनरेट करेगा सिस्टम? नहीं नहीं, उसके लिए हम लॉट साइज मेंटेन करते हैं, ठीक है. हाँ तो वो जैसे अभी यहाँ पे 10,000 होना चाहिए, बराबर. हमने जो एग्जांपल लिया, मान लो यहाँ पे 10,000 था और डेली का रिक्वायरमेंट 1000 था. अभी यही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. हमने क्या बोला, 5 दिन का अपना डिलीवरी टाइम है सप्लायर का, ठीक है. 1500 रुपए का अपना डेली का 1500 क्वांटिटी का डेली का रिक्वायरमेंट है और सेफ्टी स्टॉक है 500 का, ठीक है. तो यहाँ इस एग्जांपल को अगर हम देखेंगे तो अपना रीऑर्डर पॉइंट आया 8000, ठीक है. क्लियर है. ओके. नाउ इनिशियली सपोज रीऑर्डर पॉइंट इज 8000, मटेरियल मास्टर में हमने 8000 मेंटेन किया, ठीक है. नाउ इसका मतलब क्या है, 5 इंटू 1500 मतलब मेरा 5 दिन का प्रोडक्शन जो है चलेगा, प्लस उसमें सेफ्टी स्टॉक मेरा 500 है. नाउ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री का लेवल लेते हैं 7500, चलो 7500, ठीक है. तो 8000 प्लस 7500 15500 एग्जिस्टिंग लेवल है सपोज. कैसे कैलकुलेट किया है मैंने, अपना रीऑर्डर पॉइंट प्लस उसमें 5 दिन का क्वांटिटी मैंने और ऐड कर दिया, 5 इंटू 1500, ठीक है, टू
continue with this example now. Suppose this is Monday, 5 days का प्रोडक्शन अपन लेते हैं, ठीक है। मंडे को 1500 क्वांटिटी यूज हुआ, यहाँ पे बचा 14,000। इन्वेंट्री का लेवल आपका होगा 14,000, फिर 1500 आपने यूज किया, कितना होगा 14,000 माइनस 1500। एंड ऑफ द डे ट्यूसडे को आपके पास इतना स्टॉक बचेगा 12,500। फिर वेडनेसडे को आपने 12,500 माइनस किए 1,500। एंड ऑफ द डे वेडनेसडे यू विल हैव 11,000 इन स्टॉक। फिर आपने कंज्यूम किया थर्सडे को 11,000। एंड ऑफ द थर्सडे यू हैव 9,500 इन स्टॉक। फिर आपने यूज किया फ्राइडे को 9,500 माइनस 1,500, 8,000 आपके पास बचेगा। ठीक है, रीऑर्डर पॉइंट इज 8,000। दिस इज फ्राइडे। ठीक है, तो एक वीक का आपका प्रोडक्शन हो गया। फ्राइडे को 8,000 क्वांटिटीज आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है। आपका रीऑर्डर पॉइंट भी 8,000 है। ठीक है, अभी आपने इस दिन को एमआरपी रन किया, तो अभी अपना रीऑर्डर पॉइंट और क्या बोलते हैं उसको एग्जिस्टिंग स्टॉक दोनों सेम है, तो इस केस में एमआरपी कुछ भी जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, इसका स्टॉक 8,000 से कम होना चाहिए। सपोज करो यहाँ पे 7,900 का स्टॉक है ऑन डे एंड फ्राइडे। आफ्टर आपका प्रोडक्शन 7,900 का स्टॉक आपके पास बचता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एमआरपी रन किया। या फिर चलो मंडे को ले लेते हैं। नेक्स्ट मंडे आपने एमआरपी को रन किया, आपका स्टॉक हो गया यहाँ पे 8,000 माइनस 1,500, 6,500। और मंडे को आपने एमआरपी रन ले लिया। ठीक है, तो ये मंडे टू मंडे होगा फिर एमआरपी रन। अगर फ्राइडे टू फ्राइडे लेंगे तो यहाँ पे हम 7,900 को कंसिडर कर सकते थे। तो अभी मंडे को क्या होगा, जब एमआरपी रन होगा, ठीक है, तो ये एग्जांपल लेंगे तो एक दिन का हमारे पास शॉर्टेज आएगा, बट लेट अस डिस्कस, अंडरस्टैंड करते हैं इसको। ठीक है, मंडे को अगर हमने एमआरपी रन किया तो यहाँ पे सिस्टम एक पीआर बनाएगा। नाउ योर क्वेश्चन इज कि ये पीआर कितनी क्वांटिटी का होगा। करेक्ट सर, ये करेक्ट, तो ये जो पीआर होगा, ये पीआर का क्वांटिटी हम लॉट साइज पे डिसाइड करते हैं। तो अगर यहाँ पे 6,500 है और मैंने एमआरपी रन किया, तो यहाँ पे 1,500 का पीआर जनरेट होगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। बिकॉज 1,500 का अगर मैं पीआर बनाता हूं तो अभी ये मंडे को 6,500 हमारे स्टॉक में है। ठीक है, मंडे एंड पे। ट्यूसडे को अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, 5,000 होगा। वेडनेसडे को क्या होगा, 3,500 होगा। ट्यूसडे को सॉरी थर्सडे को क्या होगा, 2,000 होगा। फ्राइडे को क्या होगा, 500 ही स्टॉक में बचेगा। और 5 दिन का अगर हमने डिलीवरी टाइम कंसिडर किया तो नेक्स्ट मतलब यहाँ पे हमने एमआरपी रन किया, पीआर बनाया, अभी वो आएगा हमारा कब, 5 दिन का डिलीवरी टाइम। तो सैटरडे को हमारे प्लांट में आएगा, मंडे को आएगा सपोज। तो मंडे को जब वो डिलीवर होगा और यहाँ पे सिर्फ 1,500 आएगा, कितना स्टॉक हुआ मेरे पास टोटल, सेफ्टी स्टॉक बचा है 500 मेरे पास, और ये 1,500, 2,000 हो गया। 2,000 से मेरा क्या प्रोडक्शन कंटिन्यू होगा, सिर्फ एक दिन का प्रोडक्शन होगा। तो मैं 1,500 ऑर्डर करके कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉट साइज मेंटेन करते हैं मटेरियल मास्टर। तो लॉट साइज क्या होता है, जैसे अभी आप वीकली एमआरपी रन कर रहे हो,
तो एक वीक में डेली कंजम्पशन कितना है आपका? 150। तो एक वीक में 5 डेज इंटू 150, 7500। तो आप जब ऑर्डर करोगे आप 7500 को ऑर्डर करोगे। तो यहाँ पे 6500 जैसे ही चला गया नीचे, अपने एमआरपी रन किया, 7500 का आपका पीआर बनेगा। मंडे को ट्यूसडे को 1500 कंज्यूम हुए, 5000 बचे। वेडनेसडे को 3500 बचे। थर्सडे को 2500 बचा। फ्राइडे का कंजम्पशन हुआ आपका 500 क्वांटिटी आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है। मंडे को आपके पास मंडे मॉर्निंग को 7500 और आ जाएंगे। आपका एग्जिस्टिंग स्टॉक होगा 8000। वापस आप 5 दिन के लिए प्रोडक्शन रन करोगे, फिर मंडे को आपका एमआरपी रन होगा, फिर 7500 करोगे। गॉट द पॉइंट? ठीक है। सो जब तक सप्लायर आपको मटेरियल डिलीवर कर रहा है, यहाँ पे जब हम ऑर्डर कर रहे हैं 6500 को, जब हम पीआर बना रहे हैं, एमआरपी रन कर रहे हैं, तो आने वाले 5 दिन तक आपका प्रोडक्शन स्मूथली चलना चाहिए, so that on the availability date you will have this material delivered और आपका प्रोडक्शन फिर चलता रहेगा। क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस एवरेज डेली रिक्वायरमेंट मतलब आपका दिन का कंजम्पशन इनटू सप्लायर को जितना टाइम मटेरियल को डिलीवर करने को लगता है, प्लस आपका सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन्ड एज रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग, सो दैट जब तक मटेरियल डिलीवर हो रहा है तब तक आपका प्रोडक्शन स्मूथली चलता है। और कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है, दैट इज बेस्ड ऑन योर लॉट साइज। तो आपका लॉट साइज ऐसे मेंटेन किया जाता है, तो जो प्लानर होता है वो लॉट साइज को ऐसे मेंटेन करता है कि आपका प्रोडक्शन का कभी भी शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, आपका प्रोडक्शन स्मूथली रन होना चाहिए। क्लियर? अंडरस्टूड? मतलब सर इस केस में कभी भी 6500 क्वांटिटी हो गया तो फिर एमआरपी रन करने के बाद में उसमें प्लस 7500 ऐड हो जाता है, करेक्ट। तो जाके 15500 होता नहीं, अगर 6500 है हमारे पास, अभी यहाँ पे 6500 हुआ था, ठीक है, मतलब द पॉइंट इज रीऑर्डर पॉइंट के नीचे जैसे ही जाता है एमआरपी रन हुआ तो 7500 ऑर्डर करेगा सिस्टम। ठीक है। तो अभी 6500 था यहाँ पे, नेक्स्ट 4 डेज का जो प्रोडक्शन है उसमें 6000 चला गया, बचा 500। मंडे को आपके पास ये मटेरियल अवेलेबल हो रहा है, वो बना रहा है आपका स्टॉक को 8000। अगेन 5 दिन आपने प्रोडक्शन किया, 7500 कंज्यूम होगा, 500 बचेगा। एक दिन आपने एमआरपी रन किया, फिर वो 7500 ऑर्डर करेगा और वो मटेरियल को डिलीवर करेगा। सो दिस लेवल, ये जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री का लेवल है, उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो लॉट साइज मेंटेन किया हुआ। सो यू विल मेक श्योर कि आपका जो लॉट साइज है, मतलब आपका ये 15500 होना चाहिए इन शॉर्ट। है। हाँ, ये वैल्यू को कैसे क्या वो मैच करेगा 15,500? तो उसके लिए लॉट साइज होता है, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है। तो आप लॉट साइज में आप डालते हो वहां पे फिक्स लॉट साइज, अगर आपने फिक्स डाला कि एवरी टाइम आई एम गोइंग टू ऑर्डर 15500, तो हो गया फिक्स। देन वी हैव डिफरेंट लॉट साइजेस। फिक्स लॉट साइज है, जैसे डेली का लॉट साइज होता है, वीकली का लॉट साइज होता है, मतलब दिन का क्वांटिटी जितना लगता है उतना भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, वीकली का भी कर सकते हैं, मंथली का भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके लॉट साइज पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहते हैं। समझ में आया? यस सर, मतलब कि एक लॉट साइज डिसाइड करना पड़ता है 16,000 करेक्ट। 17,000 ऐसा। हाँ, जब जो भी भी है। एमआरपी रन होगा वैसा उसका वैल्यू ऊपर चला जाएगा लॉट साइज में। करेक्ट। करेक्ट। तो एमआरपी जैसे ही रन होगा वो 15500 ऑर्डर करेगा। जो मटेरियल आएगा तो 15500 क्वांटिटी आपको डिलीवर होगा, तो वापस आपका साइकिल कंटिन्यू चलता है। तो जैसे ही हम लॉट साइज वगैरह देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लॉट साइज, यू विल गेट इट हाउ इट वर्क्स। ठीक है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो द कंसेप्ट इज
whenever the stock falls your reorder point, उसका एमआरपी रन होगा। अगर स्टॉक का लेवल प्री-ऑर्डर पॉइंट से ज्यादा है तो एमआरपी रन नहीं होगा, मतलब एमआरपी आउटपुट में कुछ जनरेट नहीं करेगा, पीआर या प्लानर। द पॉइंट इज स्टॉक का लेवल जब आपके रीऑर्डर पॉइंट से कम जाएगा तभी एमआरपी उसको रन करेगा और प्रोक्योरमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो रीऑर्डर पॉइंट को भी ऐसे डिफाइन करना है कि जब तक मटेरियल आपका डिलीवर नहीं हो रहा है तब तक आपका प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होना चाहिए। दैट इज द रीजन द फॉर्मूला इज एवरेज डेली रिक्वायरमेंट इनटू रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, क्लियर? अंडरस्टूड? यस सर। ठीक, so this is how your reorder point is defined in the material master. Now let us see in system. Basic. भी यहाँ पे मैं एमआरपी प्रोफाइल डाल देता हूँ जो हमने क्रिएट किया था। क्या क्रिएट किया था? एजी कुछ तो नाम से किया था। ठीक है, कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने प्रोक्योरमेंट टाइप सेलेक्ट किया, एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट। ठीक है, अभी प्लान्ड डिलीवरी टाइम लेते हैं 5 डेज। सेफ्टी स्टॉक ले लिया हमने 500 क्वांटिटी और 5 डेज का डेली कंजम्पशन हमने लिया है 1500 और सेफ्टी स्टॉक लिया है 500। तो मेरा रीऑर्डर पॉइंट क्या होना चाहिए? जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें 8000 होना चाहिए। ठीक है, 8000 इज आवर रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉट साइज। लॉट साइज मतलब क्या है? लॉट फॉर लॉट ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब जितने का शॉर्टेज आएगा उतना वो ऑर्डर करेगा। ठीक है, यहाँ पे और एक लॉट साइज हम ले लेते हैं और 6 lot size, 6 order quantity। अच्छा, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्या गया, रिप्लेनिश टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मैं सिस्टम में एक मैक्सिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करूंगा। मैं उस मटेरियल का उतना ही क्वांटिटी मेरे प्लांट में मेंटेन कर सकता हूँ या स्टोर कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। हमने एग्जांपल लिया था 15,500। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है मैं 15,500 क्वांटिटीज इस मटेरियल का मेरे इस प्लांट में मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो जब भी मैं ऑर्डर करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि टोटल 15,500 मेरे पास अवेलेबल हो। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? अभी मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। सो व्हाट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल? मैक्सिमम स्टॉक लेवल मीन्स मेरा जो स्टोरेज कैपेसिटी है उस मटेरियल का वो 15,500 है। उससे ज्यादा क्वांटिटी मैं मेरे स्टोरेज लोकेशन में स्टोर नहीं करता। तो जब भी मैं ऑर्डर करूंगा आई विल मेक श्योर कि मैं 15,500 जो मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल है उतना क्वांटिटी कंप्लीट होना चाहिए, उतना क्वांटिटी में ऑर्डर करूंगा। मैंने इसको सेव मटेरियल
लेट अस डिस्प्ले द मटेरियल मास्टर। अभी इस मटेरियल का स्टॉक कितना है? यस, कितना स्टॉक होगा इस मटेरियल का? स्टॉक है क्या हमारे पास? अभी नहीं है, बिकॉज अभी ये मटेरियल हमने क्रिएट किया है, इसको हमने सप्लायर से ऑर्डर नहीं किया है। इन शॉर्ट, हमने इसको रिप्लेनिश नहीं किया है, तो इस मटेरियल का 0 क्वांटिटी अभी मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं इसका एमआरपी रन करूंगा तो मुझे बता दो अभी कि इसका कितना क्वांटिटी का पीआर बनना चाहिए। यस, कितना क्वांटिटी का पीआर बनेगा? क्या हुआ? 15,500 सर। करेक्ट, 15,500, बिकॉज हमने क्या मेंटेन किया है? रीऑर्डर पॉइंट इक्वल टू 8,000 हमने मेंटेन किया। ठीक है, बराबर। मेरा एग्जिस्टिंग स्टॉक क्या है? 0 है। तो अगर मैं एमआरपी रन करूंगा तो मैंने लॉट साइज क्या मेंटेन किया है? रिप्लेनिश टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रिप्लेनिश टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो जितना मेरा स्टोरेज कैपेसिटी है उतना कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मैंने किया है मेंटेन मटेरियल मास्टर में 15,500। तो जब एमआरपी रन होगा, जो पीआर बनेगा वो क्या करेगा? इस लेवल को मैच करने की कोशिश करेगा, कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो 15,500, एग्जिस्टिंग स्टॉक मेरा 0 है, तो पीआर बनेगा 15,500। अभी एमआरपी को रन करते हैं, देखते हैं कितना बना। 15,500 का पीआर बना एमआरपी का। दिस इज योर प्लान्ड ऑर्डर। प्लान्ड ऑर्डर बना और वो कितने क्वांटिटी का बना? 15,500 का बना। तो इसको हम पीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, प्लान्ड ऑर्डर बनेगा या पीआर बनेगा, वो कुछ चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। उसमें पहला चीज़ है कि मटेरियल मास्टर में हमने प्रोक्योरमेंट टाइप एक्सटर्नल मेंटेन किया है या इंटरनल मेंटेन किया है। और दूसरा जो होता है, तो यहाँ पे जब हम रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ परचेज रिक्वेजिशन को सिलेक्ट करता तो पीआर बना देता, उसने परचेज रिक्वेजिशन को बनाया। ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी का बन रहा है पीआर? 15,500 क्वांटिटी। पहला एलिमेंट दिखा रहा है सेफ्टी स्टॉक। 500 क्वांटिटी का अपना सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए था, वो नहीं था, इसलिए यहाँ पे वो माइनस दिखा रहा था। जब पीआर हम बनाएंगे उसका गुड्स रिसिप्ट होगा, तो 15,500 क्वांटिटी हमारे पास आएगा। उसमें से सिस्टम ने 500 क्वांटिटी सेफ्टी स्टॉक अलग से ले लिया। आपका जो अवेलेबल स्टॉक होगा वो 1500। टोटल स्टॉक क्वांटिटी हमारे पास 15,500 होगा, बट उसमें से 500 क्वांटिटी जो सेफ्टी स्टॉक करके सिस्टम मेंटेन करता है। सो जो पीआर यहाँ पे बन रहा है वो 15,500 का बन रहा है। क्लियर, अंडरस्टूड? अभी इसको हम सेव कर देते हैं। तो पीआर बना, एमआरपी का आउटपुट आपको डिस्प्ले करना है तो आप MD05 का यूज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज एमआरपी लिस्ट। तो एमआरपी का आउटपुट एज इट इज एमआरपी लिस्ट में स्टोर होता है। दिस इज अ स्टैटिक लिस्ट, मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। लास्ट टाइम जो आपने एमआरपी रन किया उसका डेटा आपको एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जो भी आउटपुट होगा एमआरपी का वो सिस्टम स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ अ एमआरपी लिस्ट। MD05 इज द ट्रांजैक्शन कोड। तो यहाँ पे आपको पीआर नंबर दिख रहा है। यू कैन कॉपी दिस पीआर, डिस्प्ले द पीआर, तो आप देख सकते हो ये जो मटेरियल है इसका 15,500 क्वांटिटी का पीआर बना है इस प्लांट में।
कैसे बना है? थ्रू एमआरपी बना है। अब स्टेटस में कॉन्टैक्ट पर्सन में आप चेक कर सकते हो, क्रिएशन इंडिकेटर इज बी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, तो ये एमआरपी के थ्रू जनरेट हुआ है। नाउ दिस पीआर इज कन्वर्टेड इनटू अ परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से भी जा सकते हैं एमआरपी लिस्ट से। यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट परचेस ऑर्डर, दिस विल टेक यू टू द स्क्रीन ऑफ क्रिएट परचेस ऑर्डर। यहाँ पे आपका पीआर नंबर कॉपी हुआ है, बस यहाँ पे आप वेंडर डाल दो, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डाल दो, अपनी कोड डाल दो, सेलेक्ट द पीआर, कॉपी द पीआर, ठीक है। प्राइस डाल दो इसका जो भी है, एंड योर पीओ इज रेडी। चेक इट एंड सेव इट। हमने इसको सेव किया तो पीओ बना। जैसे ही पीओ बना, कॉपी दिस परचेस ऑर्डर टू द गुड्स रिसिप्ट, ठीक है। ईगो में जाओ, गुड्स रिसिप्ट कर दो। व्हाई आई एम डूइंग दिस गुड्स रिसिप्ट? टू जनरेट द स्टॉक इन द प्लांट। इसलिए तो हम एमआरपी रन करते हैं ना, कि सप्लायर को पीओ दिया जाए, पीओ देने के बाद उसका हम गुड्स रिसिप्ट करके मटेरियल अवेलेबल हो, एंड देन वी विल डू द प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको मैं रिलीज कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। परचेस ऑर्डर कितना क्वांटिटी आ रहा है? 15,500 आ रहा है। इसका हम गुड्स रिसिप्ट कर रहे हैं स्टोरेज लोकेशन में। इसको मैंने चेक किया, सेव। नाउ वी हैव स्टॉक इन सिस्टम। अपने पास अभी इस मटेरियल का 15,500 का स्टॉक आ गया, ठीक है, जिसमें से 15,000 हमारा अवेलेबल में दिखेगा, 500 क्वांटिटी हमको सेफ्टी स्टॉक में ये दिखेगा। नाउ अभी एग्जिस्टिंग स्टॉक है अपना 15,500, रीऑर्डर पॉइंट है मटेरियल मास्टर में 8,000। अभी इसका एमआरपी रन करेंगे तो क्या होगा? कुछ जनरेट होगा? नहीं सर। नहीं होगा, ठीक है। तो अपने पास अवेलेबल क्वांटिटी 15,500 है, सेफ्टी स्टॉक 500 है। तो अभी देखो यहाँ पे सिस्टम ने कुछ भी जनरेट नहीं किया, बिकॉज द स्टॉक इज अबव रीऑर्डर पॉइंट लेवल, ठीक है। अभी हम एक काम करेंगे, मीगो में जाएंगे और इसको इशू करेंगे, ठीक है। गुड्स इशू मैं कॉस्ट सेंटर को कर देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन को हम नहीं कर पाएंगे, एरर आएगा, उसके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर होना चाहिए। तो कॉस्ट सेंटर को इस मटेरियल को हम इशू करते हैं। सो कॉस्ट सेंटर इज अगेन कंजम्पशन, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया। सो ऑन अ डेली बेसिस 1500, ठीक है। कहाँ से करना है? PA11 से करना है, PA11 से करना है, स्टोरेज लोकेशन 1000 से करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर डालना है 1000, चेक पोस्ट। अभी स्टॉक चेक करो कितना होगा, 1500 चला जाएगा, 14,000 बचा, ठीक है। वापस यही कर लिया, फिर चेक कर लिया, फिर एमआरपी रन करोगे, कुछ जनरेट नहीं होगा, बिकॉज सिंस स्टॉक इज अगेन ग्रेटर देन 8,000, ठीक है। नाउ वापस क्या करेंगे हम? अभी मैं एक साथ 3 दिन का कर देता हूँ, ठीक है। 4,500 मतलब अपना फ्राइडे तक का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मंडे का 1500 किया, ट्यूसडे का 1500 किया, अभी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तीनों का एक साथ 4,500 में कर रहा हूँ। चेक करो,
पोस्ट करो। तो एंड ऑफ द डे फ्राइडे आपके पास जो स्टॉक बचा वो 8000 क्वांटिटी बचा। ठीक है, क्या आप वापस से एमआरपी रन करो। MD0 डिस्प्ले क्या हुआ, कुछ जनरेट हुआ नहीं हुआ, बिकॉज 8000 का रीऑर्डर पॉइंट है और स्टॉक अवेलेबल भी 8000 है। 8000 से जब कम होगा तभी वो एमआरपी में कंसिडर होगा। अभी मैं वापस एक गुड्स इशू कर देता हूँ। ठीक है, 10 क्वांटिटी का गुड्स इशू करता हूँ। तो किसी डिपार्टमेंट ने हमको 10 क्वांटिटी, ये मंडे टू फ्राइडे में किसी कॉस्ट सेंटर को हमने क्या किया, 10 क्वांटिटी इशू किया। ठीक है, क्लियर। तो सपोज करो ट्यूसडे के दिन एक कॉस्ट सेंटर मतलब किसी डिपार्टमेंट का बंदा आपके पास आया, उसने बोला कि इस मटेरियल का 10 क्वांटिटी हमको चाहिए। आपने 10 क्वांटिटी दे दिया। क्वालिटी का बंदा आया, बोला हमको क्वालिटी का कुछ टेस्ट करना है, आप इसका 10 क्वांटिटी हमको दे दो, हमारे कॉस्ट सेंटर पे इशू कर दो। आपने उसको इशू कर दो। कब किया ये, आपने ट्यूसडे को किया था। ठीक है, तो आपका अभी एग्जिस्टिंग स्टॉक क्या हुआ, 7990। कब हुआ ये, एट द डे एंड ऑफ फ्राइडे। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अभी अगर आप एमआरपी रन करोगे तो कितने का पीआर बनेगा, कितने का पीआर बनेगा? 10 क्वांटिटी का नहीं, 10 क्वांटिटी लॉट साइज में क्या है सर, 15,500 का। कितना बनेगा फिर, क्वांटिटी कितना आएगा पीआर? 15,500 माइनस 7,990, 7,510। ठीक है, तो जब इसका गुड्स रिसिप्ट होगा तो कितना होगा आपके पास, 15,500। ठीक है, क्लियर। वापस फिर आपका डेली प्रोडक्शन चलता रहेगा 1500 1500 1500। तो जब तक वो डिलीवर हो रहा है, उसका डिलीवरी डेज 5 डेज का है। ठीक है, तो जब तक वो डिलीवर हो रहा है तब तक अगर यहाँ से हम डेली 1500 1500 कंज्यूम करते हैं 5 दिन के लिए, मंडे टू फ्राइडे, तो 7500 हमारा कंज्यूम होगा। हमारे पास 4900 नहीं सॉरी 490 क्वांटिटीज हमारे पास स्टॉक में रहेगा, जो सेफ्टी स्टॉक रहेगा। फिर मंडे को आपके पास ये क्वांटिटी आएगा, टोटल स्टॉक होगा आपका 15,000। फिर आप 5 दिन प्रोडक्शन करोगे, वापस ये इस लेवल पे चला जाएगा। फिर आप एमआरपी रन करोगे, फिर वो इतना क्वांटिटी को ऑर्डर करेगा। ये आपका साइकिल कंटिन्यू चलता है। क्लियर, अंडरस्टूड? एनी डाउट? और ये अनरिस्ट्रिक्ट में इतना ही बताएगा क्या सर, ये स्टॉक अभी 7,990? अभी तक हमने गुड्स रिसीव किया नहीं ना। हाँ। दिस इज योर आउटपुट ऑफ एमआरपी। मतलब ये ऑर्डर करना है, ये आपका शॉर्टेज है फॉर द नेक्स्ट मंथ। समझ में आ रहा है? ये क्या है, 7500 का आपने ये क्यों जनरेट किया, बिकॉज आपका स्टॉक रीऑर्डर लेवल से नीचे गया है। अगर आप ऑर्डर नहीं करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 दिन तक ही आपका प्रोडक्शन चलेगा। तो अगर 5 दिन के बाद आपको वापस प्रोडक्शन करना है, आपका प्रोडक्शन तो कंटिन्यू चलना चाहिए ना। यस। ठीक है, तो ये तो हम एक वीक की बात कर रहे हैं, वीकली कंसिडर कर रहे हैं ना हम। तो इस स्टॉक के साथ मेरा नेक्स्ट वीक का प्रोडक्शन होगा। बट अगर मैंने एमआरपी रन करके ये क्वांटिटी को ऑर्डर नहीं किया, ये क्या कर रहे हैं हम, दिस इज नथिंग बट योर रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का जो प्रोडक्शन है वो इसमें चल जाएगा, बट उसके नेक्स्ट वीक के लिए
आपके पास ये मटेरियल आना चाहिए। दैट इज वाई यू आर रनिंग एमआरपी। वाई यू रन एमआरपी? टू डिटरमाइन द शॉर्टेज। आपका रिक्वायरमेंट क्वांटिटी कितना है वो डिटरमाइन करने के लिए हम एमआरपी रन करते हैं। तो ये क्या है? ये आपका रिक्वायरमेंट है, इतना क्वांटिटी आपको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपका प्रोडक्शन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू होना चाहिए। क्लियर? अंडरस्टूड? तो जो प्लानिंग होता है वो अलग अलग कंपनी में अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग बेसिस पे होता है। किसी मटेरियल का जो बायर है वो वीकली पे करता होगा, किसका 15 डेज लेवल पे होता होगा, किसका मंथली लेवल पे होता होगा। ठीक है? तो जैसे उनका प्लानिंग होता है उस हिसाब से ये सारा डेटा सेटअप होता है। अंडरस्टूड? तो ये क्या है? ये पीआर है। ये प्लान ऑर्डर बना है अभी, तो इसका पीआर में कन्वर्जन होगा, पीआर का पीओ में कन्वर्जन होगा, और मटेरियल आपको डिलीवर होगा इस डेट को। ठीक है? अंडरस्टूड? क्लियर? तो स्टॉक एग्जिस्टिंग अभी उतना ही दिखेगा क्योंकि अभी तक हमने उसका गुड्स रिसिप्ट नहीं किया है। तो उसका पीआर बनना चाहिए, पीओ बनना चाहिए, देन उसका गुड्स रिसिप्ट होगा। गुड्स रिसिप्ट होगा तब तक आपका ये स्टॉक जो है वो 490 ही यहाँ पे रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? नहीं समझ में आ रहा है क्या? अभी का जो वीक है, ठीक है, उस वीक के बाद हमारे पास कितना स्टॉक बचा है? 7990। 7990 ये हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉक है। आज हमने एमआरपी रन किया, पीआर बना, कितना क्वांटिटी का बना? 7510। 7510 क्वांटिटी का इसका पीआर बना अभी मंडे को। ठीक है? कमिंग मंडे को हमने प्रोडक्शन किया। 1500 क्वांटिटी माइनस होगा। किससे माइनस होगा? इससे माइनस होगा। $6490 ट्यूसडे, ये -1500 वेडनेसडे, this -1500 Thursday, this -1500 Friday, this minus। तो नेक्स्ट फ्राइडे शाम को हमारे पास स्टॉक में सिर्फ 490 क्वांटिटीज रहेगा। बराबर? मंडे को हम क्या करेंगे? मंडे को प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर इस पीआर का पीओ नहीं बना और इसका जीआर नहीं बना तो ये जो हमने एमआरपी आज रन किया इसका पीआर बनेगा। ठीक है? मंडे को इसका पीओ बनेगा और वो पीओ सप्लायर को मंडे को भेजा जाएगा। ठीक है? मंडे को उसको पीओ मिला, 5 दिन उसको डिलीवरी के लिए लगता है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे को आपके प्लांट के गेट पे मटेरियल आया। मंडे मॉर्निंग को आपने सिस्टम में उसका गुड्स रिसिप्ट किया या सैटरडे इवनिंग को आपने उसका गुड्स रिसिप्ट किया। अगर सैटरडे हॉलीडे है तो नहीं होगा। प्लांट आपके कैलेंडर में अगर सैटरडे संडे हॉलीडे है तो गुड्स रिसिप्ट सैटरडे को नहीं होगा, मंडे मॉर्निंग को होगा। मंडे मॉर्निंग को आपके पास 7500, ये जो भी हमने ऑर्डर किया था 7510 ये स्टॉक में आएगा। तो 7510 प्लस 490 विल बी योर स्टॉक ऑन मंडे मॉर्निंग।
है 8000, नहीं सॉरी, हाँ 8000 ही होगा ना। फिर 5 दिन आपका प्रोडक्शन चलेगा, फिर आपका पीआर बनेगा, फिर स्टॉक आएगा, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर, अंडरस्टूड। तो अभी यहाँ पे जो एमआरपी रन होगा, सॉरी यहाँ पे कितना बचा था अपने पास, 490 बना था, ठीक है। तो फिर वापस हम यहाँ पे एमआरपी रन लेंगे, करेक्ट। ये मंडे को आ जाएगा, बट यहाँ पे वापस एमआरपी रन होगा। एमआरपी रन होगा तो अभी वो कितना क्वांटिटी ऑर्डर करेगा, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करेगा। अभी यहाँ पे आपका जो पीआर का क्वांटिटी रहेगा वो होगा 15,500 माइनस 490, उतने क्वांटिटी का पीआर बनेगा यहाँ पे। $15,010 का। तो ये फिर 5 दिन आपका प्रोडक्शन चलेगा, आपके पास 500 क्वांटिटी बचेगा। मंडे मॉर्निंग को आपके पास 15,010 क्वांटिटी वापस आएगा, फिर ये 15,500 होगा, ऐसा ये कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर, अंडरस्टूड। एनी यस डाउट, एनी सर। क्वेश्चन? ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग विल वर्क, ठीक है। तो रीऑर्डर पॉइंट मतलब क्या, जब भी आप गुड्स इशू कर रहे हो या गुड्स रिसीव कर रहे हो, व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी गुड्स मूवमेंट फॉर दैट मटेरियल, सिस्टम उसका एग्जिस्टिंग स्टॉक मटेरियल मास्टर के रीऑर्डर पॉइंट के साथ कंपेयर करता है। अगर एग्जिस्टिंग स्टॉक रीऑर्डर पॉइंट से कम हो गया, उसके बाद का जो एमआरपी रन होगा उसमें उस मटेरियल का प्रोक्योरमेंट के लिए प्रपोजल बनेगा। बेस्ड ऑन कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है, ये सिस्टम डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द लॉट साइज, ठीक है। देयर आर डिफरेंट लॉट साइजेस, लेट अस टेस्ट द रिमेनिंग लॉट साइजेस एज वेल। तो उनको देख लेते हैं क्या क्या होता है लॉट साइजेस। तो लॉट साइज चेंज करते हैं तो एमआरपी में कैसे आउटपुट चेंज होता है वो अभी हम देखते हैं। Go to MM02, change the material master lot size. ना यहाँ पे लॉट साइज जो है मैंने इसको चेंज किया, फिक्स लॉट साइज मैंने ले लिया, फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी फिक्स। इसका मतलब क्या है, आप जब भी ऑर्डर करोगे यू विल ऑर्डर अ फिक्स क्वांटिटी, लाइक 1500। तो इसका मतलब क्या है, अभी जब भी मेरा एमआरपी रन होगा, जब भी मैं ऑर्डर करूंगा तो 1500 क्वांटिटी, जब भी पीआर बनेगा तो 1500 क्वांटिटी का बनेगा, फिक्स क्वांटिटी। So what is the current stock now? 7,990। अगर मैं एमआरपी रन करता हूं तो अभी कितने का पीआर बनेगा, कितने का पीआर बनेगा या प्लांट ऑर्डर बनेगा, 1500 का बनेगा। रीऑर्डर पॉइंट क्या है मेरा, 8000। एग्जिस्टिंग स्टॉक क्या है, 7,990, विच इज बिलो माई रीऑर्डर पॉइंट। तो एमआरपी रन होगा तो पीआर बनेगा। पीआर कितने क्वांटिटी का बनेगा, मटेरियल मास्टर में हमने सिस्टम को बोला है कि पीआर सिर्फ 1500 क्वांटिटी का बनेगा, फिक्स क्वांटिटी 1500। तो यहाँ पे 1500 का ही पीआर। क्लियर, अंडरस्टूड।
गॉट इट? यस सर। ठीक है, बिकॉज लॉट साइज हमने 1500 मेंटेन किया हुआ है फिक्स। देन let us change it again. Lot for lot order quantity, EX मतलब क्या? जितने का शॉर्टेज उतने का पीआर बनेगा। अभी ये क्या होता है, सिस्टम रीऑर्डर पॉइंट के साथ कंपेयर करता है, तो रीऑर्डर पॉइंट को मैच करने के लिए जितना क्वांटिटी कम है उतने का ही पीआर बनेगा। तो अभी यहाँ पे कितने का शॉर्टेज है अपने पास? 10 क्वांटिटी, 10 का ही पीआर बनेगा। ठीक है, क्लियर? लॉट फॉर लॉट मतलब जितने का शॉर्टेज आएगा उतने का पीआर बना देगा सिस्टम। यहाँ पे रिप्लेनिश रीऑर्डर पॉइंट को मैच करने के लिए सब 10 का डिफरेंस है तो 10 का पीआर बना। देन अगेन चेंज इट, चेंज करके डायनामिक लॉट साइज कैलकुलेशन, रिप्लेनिश टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमने देखा। ठीक है, देन ये वीकली लॉट साइज वगैरह हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, वीकली, डेली, मंथली का जो है। अभी यहाँ पे जैसे एक लॉट फॉर लॉट अगर हमने यूज किया है और उसमें हमने कुछ ये दे दिया सिस्टम को रेस्ट्रिक्शंस, या लाइक जैसे भी काम करते हैं यहाँ पे फिक्स में नहीं कर पाएंगे। मिनिमम लॉट साइज 1000, ठीक है, और मैक्सिमम लॉट साइज कहाँ है? 2000। सेव किया हमने, क्या मेंटेन किया हमने? लॉट फॉर लॉट ऑर्डर क्वांटिटी। सीरियल मास्टर में हमने क्या मेंटेन किया? लॉट फॉर लॉट मतलब जितने का शॉर्टेज होगा उतना ऑर्डर करना है, बट उसमें एक कंडीशन लगा है, मिनिमम जो है 1000 का ही, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द ऑर्डर शुड बी 1000। सप्लायर बोलता है कि कम से कम 1000 का पीओ होना चाहिए, उससे कम का होगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, या मैक्सिमम 2000 का होना चाहिए। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस क्यों आते होंगे? बेस्ड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन यूनिट, उसके ट्रक का जो साइज, ट्रक का जो कैपेसिटी रहेगा वो 1000 से 2000 एक ट्रक में लोड करके आपको बेच सकता है। तो अगर आप 500 का ऑर्डर दोगे तो वो बोलता है कि मुझे नहीं परवड़ता, उसके लिए मैं एक ट्रक लोड करके नहीं बेच सकता। जो मिनिमम 1000 होनी चाहिए, मैक्सिमम एक ट्रक का लोड 2000 है, 2000 ही आप मुझे दे दो। 2200 का बनेगा तो आपको एक 2000 का देना पड़ेगा, दूसरा 1000 का देना पड़ेगा। मिनिमम 1000 का है, तो अभी अगर हम एमआरपी रन करते हैं तो कितने का पीआर बनेगा? रिक्वायरमेंट कितने का आएगा? अभी लॉट फॉर लॉट ऑर्डर क्वांटिटी में 10 का आ रहा था, तो यहाँ पे 1000 का पीआर बना। क्यों बना 1000 का? शॉर्टेज अपना 10 क्वांटिटी का ही है, बट सप्लायर क्या बोल रहा है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी 1000, इसलिए 1000 बना। क्लियर? अंडरस्टूड? सुनो, नहीं समझा? हेलो, यस सर, समझा। समझा ना? ठीक है, अभी यहाँ से मैं 5000 क्वांटिटी को इशू कर देता हूँ। ठीक है, गुड्स इशू कर देता हूँ 5000 क्वांटिटी का, एंड वी विल रन द एमआरपी। गुड्स इशू
ठीक है. नाउ इफ यू कम हियर, द एग्जिस्टिंग स्टॉक इज 2990. रीऑर्डर पॉइंट है हमारा 8000. अभी हम एमआरपी रन करेंगे तो देख लो क्या होता है, कितने पीआर बनेंगे, क्या बनेगा. ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, एंटर करते हैं. नाउ यू सी हियर, ऐसा क्यों हुआ? 8000 is our reorder point. 8000 माइनस एग्जिस्टिंग स्टॉक है 2990. 2990, तो 5010 का मेरा रिक्वायरमेंट आना चाहिए था. 5010 का मेरा शॉर्टेज है. तो कितने पीआर बने अभी देख लो. यहाँ पे एक पीआर बना 2000 क्वांटिटी का, बिकॉज हमने मटेरियल मास्टर में क्या मेंटेन किया है? मटेरियल मास्टर में हमने मेंटेन किया है लॉट साइज, लॉट फॉर लॉट, मतलब जितने का शॉर्टेज होगा उतना हम ऑर्डर करेंगे, बट उसमें कंडीशन है मिनिमम 1000 क्वांटिटी का पीआर होना चाहिए, मैक्सिमम 2000 का होना चाहिए. तो अभी शॉर्टेज आ रहा है टोटल 5010 का, तो एक पीआर मैक्सिमम 2000 क्वांटिटी का होगा. ठीक है, तो पहला पीआर बना 2000 क्वांटिटी का, बचा कितना क्वांटिटी? दिस माइनस 2000. 3010 बना, बचा. दूसरा पीआर बना 2000 क्वांटिटी का, बिकॉज मैक्सिमम एक पीआर का क्वांटिटी 2000 होना है. तो दूसरा पीआर बना 2000 का, बचा कितना? 3000 माइनस 2000, 1010 क्वांटिटी बचा. ठीक है, तो तीसरा पीआर बनेगा 1010 क्वांटिटी का, क्योंकि मिनिमम 1000 क्वांटिटी का पीआर बन सकता है, मैक्सिमम 2000 का बन सकता है. तो यहाँ पे देख लो, पहला 2000 का बना, दूसरा 2000 का बना, तीसरा 1010 का बना. क्लियर, अंडरस्टूड? अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे 900 बनता, तो यहाँ पे 1000 का पीआर बनता, कि मिनिमम 1000 का मांगा है उसने. ठीक है, यहाँ पे अगर 2010 होता तो यहाँ पे एक 2000 का बनता, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 2000 का है, और बची हुई 10 क्वांटिटी के लिए वापस 1000 का बनता, बिकॉज मिनिमम इज 1000 क्वांटिटी. दिस इज हाउ द लॉट साइजेस विल वर्क. क्लियर, अंडरस्टूड? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? मतलब इसमें सर जैसे कंपनी के रिक्वायरमेंट से सब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हाँ, करेक्ट. तो लॉट साइज तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हुए उनको जैसा चाहिए वैसा हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं लॉट साइजेस. क्लियर? ओके, नाउ मटेरियल स्टेटस. हमने मटेरियल मास्टर के टाइम पे देखा था या नहीं देखा था, आई डोंट नो. वी विल डिस्कस मटेरियल स्टेटस. व्हाट इज मटेरियल स्टेटस? तो मटेरियल मास्टर में मटेरियल स्टेटस हम मेंटेन कर सकते हैं. मटेरियल स्टेटस मतलब उस मटेरियल को हम एक स्टेटस असाइन कर सकते हैं कि उस मटेरियल को यूज करना है या नहीं करना है, वो मटेरियल अभी इन यूज है या वो मटेरियल ऑब्सोलीट हो चुका है, या वो मटेरियल वो किसी रीजन से हमको यूज नहीं करना है, टेम्पररी यू डोंट वांट टू यूज. सो यू कैन मेंटेन स्टेटसेस इन कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन में हम स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं, एंड मटेरियल मास्टर में उस स्टेटस को हम असाइन कर सकते हैं, and based on that status then that material will behave when we use it. For example, let us go to mm02. so material का जो status है वो दो लेवल पे मेंटेन होता है. एक जनरल डेटा में, that is your client data. सेकेंड
प्लांट लेवल पे परचेसिंग डेटा या एमआरपी डेटा में हम उसको मेंटेन कर सकते हैं. सो इफ आई गो टू बेसिक डेटा, हियर यू कैन सी x dash plant material status. This is called as cross plant material status. Means if you maintain a status here, that is applicable to all the plants in which this material is maintained. तो यहाँ पे अगर हम मटेरियल मास्टर को स्टेटस असाइन करते हैं, that status is applicable for all the plants. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 01 सिलेक्ट किया, ब्लॉक्ड फॉर प्रोक्योरमेंट स्लैश वेयरहाउस. इसका मतलब क्या है, ये मटेरियल परचेसिंग के लिए और इन्वेंट्री के मूवमेंट्स के लिए ब्लॉक हो गया. सो इफ यू रन द एमआरपी नाउ फॉर दिस मटेरियल, इट विल नॉट अलाउ यू टू रन द एमआरपी. ये आपको एरर देगा, MD03. मटेरियल PA11, plant PA11, status blocked for procurement slash warehouse, does not allow the planning run. तो ये मटेरियल का जो स्टेटस है 01, उस स्टेटस में हमने सेटिंग किया है कि इसका एमआरपी रन जब होगा तो सिस्टम ने मैसेज देना चाहिए, एरर मैसेज देना चाहिए. दैट इज मेंटेन्ड इन दिस स्टेटस 01. तो आप इस मटेरियल का किसी भी प्लांट में अगर आप एमआरपी रन करोगे तो आपको एरर देगा, बिकॉज this status is applicable for all the plants. This is cross plant across all the plants. कोई भी कंपनी कोड हो, because this is in general data. This is in general data. ये client level पे है. अगर मैं ये status सिर्फ प्लांट लेवल पे मेंटेन करता हूँ तो सिर्फ वो उस प्लांट के लिए अप्लीकेबल होगा. तो प्लांट लेवल पे हम कहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, प्लांट लेवल पे हम परचेसिंग डेटा या एमआरपी डेटा में उसको मेंटेन कर सकते हैं. या तो परचेसिंग पे मेंटेन करो या एमआरपी पे मेंटेन करो, बोथ इज सेम, द फील्ड इज सेम. प्लांट स्पेसिफिक मटेरियल स्टेटस. तो यहाँ पे अगर आपने स्टेटस मेंटेन किया 01, तो इट मीन्स दिस स्टेटस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर दिस प्लांट. तो मैंने यहाँ पे प्लांट पे मेंटेन किया, मैं ये बेसिक डेटा का जो है उसको हटा देता. तो अभी हमने प्लांट स्पेसिफिक मतलब इस प्लांट के लिए इस मटेरियल का स्टेटस 01 मेंटेन किया. एमआरपी डेटा 1 में आपको ये यहाँ पे दिखेगा, प्लांट स्पेसिफिक मटेरियल स्टेटस 01. ठीक है, मैंने इसको सेव किया. इसका मतलब क्या है, ये मटेरियल इस प्लांट में उसका स्टेटस 01 है, दैट इज ब्लॉक्ड फॉर प्रोक्योरमेंट और वेयरहाउस. सो अगेन इफ यू ट्राई टू रन द एमआरपी फॉर दिस प्लांट, दिस विल नॉट अलाउ यू, क्योंकि इसका स्टेटस क्या है, उस प्लांट के लिए ब्लॉक है. नाउ आई विल एक्सटेंड दिस मटेरियल मास्टर इन PA12 plant. MM01 is the transaction code. Enter the material code. Enter. Select purchasing data, MRP data, accounting data, PA12. Continue. I will already maintain it. कौन सा व्यू मेंटेन, ठीक है. परचेसिंग ग्रुप भी यहाँ पे मैंने स्टेटस असाइन नहीं किया PA12 में. ठीक है, सिर्फ PA11 में हमने उसको स्टेटस असाइन किया हुआ है. इसके लिए एमआरपी कंट्रोलर नहीं है तो कोई भी नहीं. ठीक है, सेव कर दिया मैंने. इफ यू रन एमआरपी फॉर प्लांट PA12 नाउ, इट विल अलाउ, क्योंकि PA12 में हमने उसको ब्लॉक नहीं किया, सिर्फ PA11 में हमने उसका स्टेटस 01 मेंटेन. यहाँ पे एमआरपी कैरी आउट हो गया, कुछ जनरेट नहीं हुआ क्योंकि अवेलेबल स्टॉक भी 0 है. कुछ तो गलत हुआ है. ठीक है, मटेरियल मास्टर मेंटेनेंस में कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि अवेलेबल स्टॉक 0 था तो यहाँ पे आउटपुट में कुछ आना चाहिए था, बट वो एरर नहीं आया जो हमको मटेरियल स्टेटस की वजह से आता है.
सो मीनिंग अगर आपने कोई स्टेटस प्लांट लेवल पे असाइन किया तो वो उस प्लांट को ही अप्लीकेबल होता है, और अगर वो स्टेटस अगर आपने जनरल डेटा में, बेसिक डेटा में अप्लाई किया तो वो सारे प्लांट के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर मैं उस मटेरियल मास्टर को चेंज करके वापस उसका स्टेटस बेसिक डेटा में मेंटेन करता हूं तो ये मुझे इस प्लांट के लिए भी एरर देगा। इसका वापस एमआरपी रन करेंगे तो एरर देगा PA12 में ब्लॉक, बिकॉज बेसिक डेटा में मैंने उसको ब्लॉक कर दिया तो वो सारे प्लांट के लिए अप्लीकेबल हो जाए। क्लियर, अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बेसिक डेटा ब्लॉक एंड परचेसिंग ब्लॉक और एमआरपी ब्लॉक। ठीक है, तो ये स्टेटस जो है, अगर हमने स्टेटस बेसिक डेटा में मेंटेन किया तो वो सारे प्लांट के लिए एप्लीकेबल होता है, और अगर हमने स्टेटस सिर्फ प्लांट में मेंटेन किया तो उस प्लांट के लिए एप्लीकेबल होता है। अब ये स्टेटस को कैसे मेंटेन किया जाता है, मतलब जो हमने 01 वैल्यू डाला वो कहाँ पे होता है, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। सो दैट इज मेंटेन्ड इन लॉजिस्टिक्स जनरल मटेरियल मास्टर सेटिंग्स फॉर की फील्ड्स डिफाइन मटेरियल स्टेटसेस। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन में लॉजिस्टिक्स जनरल में लॉजिस्टिक्स जनरल मटेरियल मास्टर सेटिंग्स फॉर की फील्ड्स डिफाइन मटेरियल स्टेटस। ठीक है, ये यहाँ पे हमको मिलेगा। इसमें सेटिंग क्या होती है, एग्जीक्यूटेड, सिलेक्ट 01, गो टू डिटेल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग क्या होते हैं sections है, like purchasing function is there, production resource tools is there, bombs is there, plant maintenance is there, routing recipe is there, material requirement is there, production is there, cross plant settings is there, cost estimate with quantity structure। तो ये अलग अलग functions है। तो ये 01 में हमने क्या मेंटेन किया है, परचेसिंग मैसेज। सो whenever you are purchasing anything, system will give error message, so B is for error message। सो सिंस यहाँ पे B मेंटेन किया है तो पीआर क्या है, पीआर परचेसिंग में बनता है, तो आपका एमआरपी रन जब होगा तो पीआर बनेगा, तो वहाँ पे एरर आएगा। सेम वे यहाँ पे आप देख सकते हो एमआरपी मैसेज, अगर आप एमआरपी को रन कर रहे हो तो यहाँ पे भी एरर मैसेज मेंटेन किया। अगर मैं यहाँ पे नो मैसेज या वार्निंग मेंटेन कर दूंगा तो उसका एमआरपी रन होगा। ठीक है, तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी मटेरियल के लिए क्या स्टेटस असाइन करना है, तो अलग अलग स्टेटसेस हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। किसी मटेरियल को सिर्फ परचेसिंग में ब्लॉक करना है, उसका प्रोक्योरमेंट स्टॉप कर देना है, तो उसका स्टेटस हम मेंटेन कर सकते हैं परचेसिंग ब्लॉक, और उसमें मैसेज सिर्फ परचेसिंग में हम मेंटेन करेंगे, परचेस नहीं होना चाहिए। तो परचेस नहीं होना चाहिए तो उसका एमआरपी रन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमआरपी का पीआर बनेगा तो पीआर का पीओ बनेगा, पीओ कम्स इनटू परचेसिंग, तो उसके लिए इसमें भी आपको एरर मैसेज मेंटेन करना पड़ेगा। वेयर हाउस के लिए किसी मटेरियल को आपको ब्लॉक करना है तो आप वेयर हाउस रिलेटेड सेक्शन में यहाँ पे मैसेज को भी मेंटेन कर सकते हो। उसका गुड्स मूवमेंट वगैरह नहीं होना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कोई भी गुड्स मूवमेंट नहीं होना है, यू कैन सेट द मैसेज एज बी। सो लाइकवाइज यू कैन मेंटेन डिफरेंट स्टेटसेस हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक फॉर टास्क लिस्ट बॉम्ब, बॉम्ब के लिए ब्लॉक करना है तो यहाँ पे बॉम्ब के लिए एरर मैसेज है, परचेसिंग में एरर मैसेज नहीं है, एमआरपी में एरर मैसेज नहीं है। राउटिंग अगेन ये प्रोडक्शन प्लानिंग में यूज होता है, बॉम्ब के टाइम बॉम्ब का उसमें यूज होता है, तो उसके रिलेटेड एरर मैसेजेस यहाँ पे मेंटेन्ड है। रॉ मटेरियल ब्लॉकेज, परचेसिंग का ब्लॉक है, इसमें सिर्फ परचेसिंग में एरर मैसेज है, बाकी सब अलाउड है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस हम मेंटेन कर सकते हैं। इन वर्क है तो परचेसिंग मैसेज ब्लॉक होना चाहिए, बॉम्ब वार्निंग मैसेज है शायद। ठीक है, सो ऐसे स्टेटस आप मेंटेन कर सकते हो, जितने स्टेटस चाहिए। अभी ऑब्सोलीट यहाँ पे किसने मेंटेन किया हुआ है, हर जगह पे एरर आएगा। ऑब्सोलीट मतलब उसका अभी यूज नहीं होना है, तो जहाँ पे भी यूज करेगा यूजर
सिस्टम उसको एरर देगा कि ये मटेरियल ऑब्सोलीट है।